Hello dear students, welcome to the class today. So children, we are carrying on with this second chapter, History, Nationalism in India. एकदम last phase है, today is the last video for this chapter. आज हम इसको खत्म करेंगे where we have started the fourth topic, the last topic, that is sense of collective belonging. How did the people had this sense of collective belonging? क्या किया देश के लिए ऐसा? what has been done by the Indians जिससे कि the Indians came together? साथ में लोग आए, कैसे आए, and what all special methods were applied, special methods were used, वो हम पढ़ रहे हैं, जिसमें कि लास्ट क्लास में we have started the discussion on the cultural processes. Symbols, when we are talking of symbol, तो सबसे पहले visually हम जो imagine करते हैं, whatever we are imagining, we need to bring our imagination in a visual form. So we bring it in a visual form. Some of the people understood कि Indians का imagination को कैसे capture करना है. How the imagination of the Indians can be captured, it has to be brought in at one place. For that purpose, some of the great painters were there in Bengal who made pictures of Bharat Mata. ऐसी ऐसी पिक्चर्स बनाई जिसको देख के लोगों का खून खौल जाता था. Yes, खून खौल जाता था means they really were moved by the kind of treatment that has been done to the Indians. एक country is just like motherland. फ्रांस वाला वो जो नेशनलिज्म इन यूरोप हमने पढ़ा. सो व्हेन इट इज मदरलैंड, हाउ कैन एनीबडी मिसबिहेव विद द मदरलैंड? मदर के साथ कोई मिसबिहेव करेगा तो क्या आप चुप रहेंगे? हम चुप रहेंगे? हम चुप नहीं रहेंगे, हम अपनी आवाज उठाएंगे. ठीक है, यही चीज यहां बताने की कोशिश की जा रही है. दिस इज व्हाट हैज बीन सेड हियर. सो फर्स्ट इमेज वाज पेंटेड बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय and he also wrote Vande Mataram. Vande Mataram was included in Anand Math. इनको देख के नहीं, मतलब Abhinavnath Tagore was also very inspired. So he also painted his famous image of Bharat Mata. इन्होंने भी भारत माता की एक बड़ी सी पेंटिंग बनाई जिसमें कि she is so shown as an ascetic figure. बिल्कुल ascetic figure means देवी के रूप में दिखाया गया. She has been shown as a Devi, Bharat Mata, and very composed, calm. मतलब लोगों को देख के लगता है कि माता है, इतनी परेशान है लेकिन कितनी शांत है. She is so silent and cool and calm. That is there. Okay. तो आने वाले दिनों में the image of Bharat Mata was acquiring different forms. अलग अलग तरीके से भारत माता को पोर्ट्रे किया जा रहा था. एंड शी वॉज पेंटेड बाय डिफरेंट आर्टिस्ट. अलग अलग लोगों ने ये इमेज बनाया. एंड डिवोशन, व्हाट हैपेंड, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट टू इमेजेस, वन बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय एंड अदर वन बाय अवनींद्रनाथ टैगोर. लेकिन और भी बहुत सारे लोग थे जिन्होंने की भारत माता की इमेजेस को portray किया, and people can relate themselves. Okay, these images circulated in popular prints and was painted by different artists. अलग अलग आर्टिस्ट ने बनाया ये. Got it? ये मदर फिगर का के बाद के लिए जो डिवोशन था, it was to be seen as evidence of one's nationalism. So devotion to
mother figure was nationalism. ये तो एक तरीका हो गया. Okay, when we are talking, please understand, when we are talking of cultural processes and symbols, so this is one of the biggest symbols which had helped in bringing the Indians together, in creating awareness amongst the Indians about the condition of the country. Got it? दूसरा क्या था? Indian nationalism. क्योंकि remember that answer developed through folklore. असली इंडिया अगर देखना है तो गांव में देखना पड़ता है, जिसमें कि थ्रू मूवमेंट हुआ, जिसमें कि इंडियन फोकलोर वाज रिवाइव्ड. मूवमेंट टू रिवाइव folklore. Why revive? Why revive? Revive because Indians जो गांव में रहते थे उनको बिल्कुल इतना demoralize कर दिया गया था. They were demoralized to such an extent that they have forgot their brilliant past. Indians understood कि they are born to be subjugated. उनको दबाने के लिए ही बनाया गया है. So 19th century में nationalists began to record the folk tales sung by bards and toured villages to gather folk songs and legends. गांव गांव में गए. अभी देखो यहाँ पे यूनिटी का जा रहे थे फोकलोर, फोक सॉन्ग्स और फोक टेल्स को कलेक्ट करने के लिए, लेकिन लोगों तक मैसेज भी तो पहुंचा रहे थे. पीपुल विल आस्क नहीं, क्यों आप कलेक्ट कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है? वो कहेंगे हमको वी आर स्ट्रगलिंग फॉर मेकिंग इंडिया फ्री. देश को हम फ्री करना चाहते हैं और फ्री करके हम अपने कंट्री में अपने हिसाब से जीना चाहते हैं. वी वॉन्ट टू stay in our country with full pride and respect. तो ये क्या हुआ? मैसेज ऑल्सो. सो in late 19th century, nationalists toured villages. गांव गांव में जा जाके कहानियां कलेक्ट कर रहे थे, एंड टू गैदर फोक सॉन्ग्स एंड लेजेंड्स. छोटा सा एग्जाम्पल बताओ इसी चैप्टर में से. हाउ डू वी कम टू नो अबाउट अल्लूरी सीताराम राजू? अल्लूरी सीताराम राजू के बारे में हमको कहां से पता चला? Somebody might have gone to the villages, somebody might have gone to the jungles, they might have talked to the people. तो पता चला कि अरे मतलब कि in the forest areas also people are so aware. I understand. Simple example. लोग great work कर लेते हैं, पता नहीं चलता है. We don't come to know about the greatness of the people. This is somewhat was important to understand. It was making the things popular, and they believed that true picture of traditional culture has been damaged by outside forces. True picture of traditional culture has been damaged by outside forces. बाहर के लोगों ने
आके हमारी जो ट्रेडिशनल कल्चर था ना, गांव में जो लोग रहते थे, उनको बार बार ये बता दिया है, यू आर गुड फॉर नथिंग, यू आर गुड फॉर नथिंग, यू आर गुड फॉर। लगातार आप किसी को बोलेंगे, लगातार आप किसी को दबाने की कोशिश करेंगे, सताने की कोशिश करेंगे, कहीं ना कहीं तो आदमी का सेल्फ रेस्पेक्ट, कहीं ना कहीं तो आदमी का सेल्फ कॉन्फिडेंस हिल जाएगा। इट वुड बी डिस्टर्ब्ड। सो वी नीड टू रिवाइव इट। हमको रिवाइव करना है। वी नीड टू मेक द पीपल अंडरस्टैंड। ठीक है, लोगों को ये समझाना है, बी प्राउड अबाउट योर कल्चर, अबाउट योर कस्टम्स, ट्रेडिशंस। सो इट वॉज एसेंशियल टू प्रिजर्व दिस फोक ट्रेडिशन। ये गांव के कल्चर को, गांव की चीजों को बचा के रखना है। पहला स्टेप जिन लोगों ने किया, नेशनल आइडेंटिटी है, टू रिस्टोर अ सेंस ऑफ प्राइड है। गांव में रहते हैं तो क्या हुआ, इज्जत नहीं है। लेकिन ब्रिटिशर्स यूज टू शो, दे यूज टू प्रूव गुड फॉर नथिंग, और इंडियंस इस चीज को मान लेते थे। सो रविन्द्रनाथ टैगोर बिगैन कलेक्टिंग। अब देखो इंडियंस ने क्या किया। रविन्द्रनाथ टैगोर began collecting folk tales। ओके, गांव गांव में जाके कहानियां कलेक्ट करना इन्होंने शुरू किया। बैले, नर्सरी राइम्स एंड मिथ्स। बैलेज, नर्सरी राइम्स एंड मिथ। कोई चीज जो गांव के लोग मानते हैं, हो सकता है वो उतना सही नहीं हो, माइट बी, अरे गांव के लोग हैं, अनएजुकेटेड हैं, उनका अपना तरीका है जीने का, उनका अपना तरीका है कुछ चीजों को फॉलो करने का। सो हाउ दे आर फॉलोइंग दैट, उनको हम रोक नहीं सकते हैं, रोकना भी नहीं चाहिए। एंड उनको हम प्रमोट नहीं कर सकते हैं, तो एटलीस्ट वी मस्ट नॉट पुट देम डाउन। ये तो रविन्द्रनाथ टैगोर वाज। बैले, गांव में ऐसे ऐसे सॉन्ग्स होते हैं, देयर आर डांस ड्रामास, पीपल थ्रू डांस they portray many stories, they put forward many legends, many informations जो हमको नहीं पता है, हमें गांव के इन गानों से, नाच से पता चलता है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर has done it। साउथ में क्या हुआ, इन तमिलनाडु, इन मद्रास इज तमिलनाडु का कैपिटल, नतेशा शास्त्री पब्लिश्ड अ 4-volume collection of तमिल folk tales। अब क्या हुआ, देखो यहां पे एक चीज मैं बताना चाहूंगी। नाउ वी फाइंड द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द साउथ इंडिया ऑल्सो। पहले के जितने भी मूवमेंट हो रहे थे उसमें साउथ इंडिया का बहुत इन्वॉल्वमेंट नहीं था, लेकिन नाउ साउथ इंडिया वाज आल्सो इन्वॉल्व। सो इन मद्रास, दिस इज इंपॉर्टेंट, प्लीज नोट इट डाउन, नतेशा शास्त्री, ओके, published a massive 4-volume collection of तमिलनाडु में भी बहुत सारे गांव है ना। सो इट्स वेरी गुड। तमिल फोक टेल्स को उन्होंने कलेक्ट करके पब्लिश किया, तमिल फोक टेल्स। ओके, इट वॉज द, एंड उसका नाम क्या था, प्लीज रिमेंबर द नेम ऑफ द बुक, द फोकलोर ऑफ सदर्न इंडिया, द फोकलोर ऑफ सदर्न इंडिया। ब्रिटिशर्स को इंग्लिश समझ में आती थी ना, तो इंग्लिश में ही उन्होंने पब्लिश किया था, so that the Britishers also read these stories and understand how rich the Indian culture and customs and traditions is, isn't it? So just see how Indians were becoming aware. उन्होंने बताया कि folklore that is there and it was national literature, most trustworthy manifestation of people's real thoughts and characteristics.
most trustworthy manifestation of people ठीक है of people's real thought and characteristics. अब ये समझो ये मैंने क्यों लिखा, तुम भी सोच रहे होगे कि यार ये तो बुक में दिया हुआ है, मैम ने क्यों लिखा है यहाँ पे. दिस स्टेटमेंट कैन बी आस्क्ड इन योर क्वेश्चन पेपर. आई एम टॉकिंग फ्रॉम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू. उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, हु सेड दिस स्टेटमेंट. आर यू अंडरस्टैंडिंग? प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस. इसका नोट बनाइएगा कि हु सेड दिस स्टेटमेंट. आप कहेंगे हमें तो किसी ने नहीं बताया. Nobody told us who has said this statement. So the answer, you know it very well, children, Natesha Shastri. याद रखिएगा. Got it? These kind of questions are those questions जो कि आपको 100 मार्क्स लाने से रोक सकते हैं. आप हो सकता है 80 मार्क्स तक आपको आए, आप 98 पे रुक जाएं. तो सो दैट्स वाई. अब क्या हुआ, ये तो हो गया, हमने देखा इमेजेस बन गई, बुक्स लिखे गए, ट्रेडिशनल फोकलोर एंड ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स एंड थॉट प्रोसेस वाज शेयर्ड. अब क्या हुआ, ड्यूरिंग स्वदेशी मूवमेंट a tricolor flag was designed. ठीक है. स्वदेशी मूवमेंट, ऑलवेज रिमेंबर, ये गांधी जी से पहले की बात है, गांधी जी के टाइम की बात नहीं है. Whenever I am talking of स्वदेशी मूवमेंट, आप ये याद रखना कि इट इज अबाउट अ पीरियड वेयर गांधी जी वॉज नॉट देयर. ये इन्होंने डिजाइन किया एंड was designed in Bengal. और उसमें क्या था, रेड ग्रीन एंड येलो कलर. इट वॉज, उस समय का फ्लैग अलग था, रेड ग्रीन एंड येलो कलर was included. याद रखना, which was the first flag that was made. It was made in Bengal and it was designed red, green and yellow color का, and इसमें it had 8 lotuses, okay, and representing 8 provinces. पहले स्टेट नहीं था ना, ये ब्रिटिशर्स के टाइम की बात हम बता रहे हैं. एट दैट टाइम देयर वाज प्रोविंसेस, 8 provinces of British India. ठीक है. and a crescent moon, आधा moon, this kind of half crescent shaped. अब क्या हुआ, हिंदूज के लिए कमल का फूल भी था और मुस्लिम्स के लिए मून भी था. अब क्या हुआ, गांधी जी आए. पहला तो ये हो गया, रिमेंबर द डिजाइन ऑफ द फ्लैग. Please do remember the design of the flag. By 1921, Gandhi ji designed the Swaraj flag. Got it? It was again tricolor. It was tricolor, 3 कलर इसमें भी था. अब इस बार लेकिन कौन से कलर्स थे, देयर वॉज रेड, ग्रीन एंड व्हाइट इंक्लूड किया इन्होंने.
रेड, ग्रीन एंड व्हाइट। लेकिन अभी जैसे कि चरखा है ना, अभी जैसे कि अशोक चक्र इज देयर, इट हैड अ स्पिनिंग व्हील इन बिटवीन। उन्होंने क्या किया था, स्पिनिंग व्हील डाला था इन द सेंटर। इट हैड स्पिनिंग व्हील इन सेंटर। गॉट इट? ये इट वाज, देखो सिग्निफिकेंट था, उसका कारण था। वाई? क्योंकि जो स्पिनिंग व्हील इन्होंने डाला, ही वांटेड टू शो टू द ब्रिटिशर्स, दिस वाज टू प्रूव टू द ब्रिटिशर्स दैट इंडियंस आर सेल्फ सफिशिएंट। इंडियंस अपने पे निर्भर हैं, आत्मनिर्भरता का सिग्नेचर था स्पिनिंग व्हील। प्लीज अंडरस्टैंड, ओके। एंड फ्लैग को कैरी करने के लिए, होल्डिंग इट अलॉफ्ट ड्यूरिंग मार्चेस, प्रोटेस्ट मार्च होता था तो पीपल यूज टू होल्ड द फ्लैग विथ प्राइड। गॉट इट? ब्रिटिशर्स को दिखा दे, ब्रिटिशर्स को जला देते थे, सिंपल लैंग्वेज में आई एम सेइंग, ठीक है। होल्डिंग द फ्लैग हाई, खूब झंडा ऊंचा रहे हमारा, जो है विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। इट जस्ट केम टू माई माइंड, अरे ये तो बिल्कुल मेरे को ठीक टाइम पे दिमाग में आ गया। तो ये भी उसी टाइम का ही सॉन्ग है कि हमारा जो फ्लैग है वो हमेशा ऊंचा रहना चाहिए। फ्लैग इज द इज्जत ऑफ द इंडियंस। रेस्पेक्ट, ऑफ कोर्स, सेल्फ रेस्पेक्ट इज डिपेंडेंट ऑफ ऑन दीज फ्लैग। सो मार्चेस हो रहे हैं, प्रोटेस्ट मार्चेस आर हैपनिंग, पीपल आर होल्डिंग द फ्लैग हाई, ऊंचा झंडा करके, और ब्रिटिशर्स के सामने से गुजर जाते थे, ब्रिटिशर्स अंदर ही अंदर जल जाते थे। गॉट इट? सिंपल थिंग आई जस्ट केम टू माई माइंड। आफ्टर दैट, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वॉज reinterpretation of history. We have a glorious past. Children, please understand. Indians have forgotten. Britishers ने इतना बोल दिया था ना, they have instilled in the Indians a feeling of depression. हमेशा इंडियंस को लगता था हाँ यही तो मालिक हैं, what they are saying is right. Great Britishers with great ideas. No. History was reinterpreted. Many Indians began feeling that to instill a sense of pride in a nation, Indian has to be brought about differently. Many nationalists felt that history has to be reinterpreted. यहां पे नाम नहीं दिया हुआ है, बट देन ब्रिटिश ने हमेशा बताया इंडियंस आर बैकवर्ड, प्रिमिटिव। ब्रिटिश टोल्ड दैट इंडियंस जो हैं आर बैकवर्ड एंड प्रिमिटिव, जंगली हैं, या दे डोंट हैव एनी सेंस, डेवलपमेंट कुछ नहीं पता है, और अजीब तरीके से रहते हैं, अजीब तरीके से दिखते हैं। वो इज इट ट्रू? इज इट द रियलिटी? सो इंडियन सेड अच्छा, नाउ वी विल बी शोइंग यू। दे रोट अबाउट हमारा एंशियंट टाइम्स। अरे एक एग्जाम्पल देती हूँ यहाँ पे, बिकॉज मेरे अंदर का भी इंडियन जाग गया है। द इंडियन इन मी हैज ऑल्सो कम अप। Zero, decimal, who has given the decimal? Yes children, you know it very well. Aryabhat has given the decimal. उस डेसिमल को पकड़ के उन्होंने क्या किया, रॉकेट बना दिया, रॉकेट को चांद पे भेज दिया। विदाउट डेसिमल नहीं हो सकता ना। 0.0000.0052 मिली सेकेंड्स।
तो ये जो पॉइंट का जो कॉन्सेप्ट है दिया किसने था, आर्यभट्ट हैज गिवन। लेकिन वही बात है ना, हम इस्तेमाल नहीं कर पाए, वो उसका इस्तेमाल उन्होंने, दे हैव यूज्ड इट। सो व्हाट हैपेंड, इंडियंस wrote about glorious past, कि कितना हमारा ग्रेट हिस्ट्री रहा है। बाहर के लोग आके हमसे सीख के गए हैं। द ग्लोरियस टाइम्स वॉज फॉलोड बाय अ हिस्ट्री ऑफ ग्लोरियस डेवलपमेंट्स। क्या हमारे यहाँ पे साइंस की पढ़ाई नहीं होती थी? डेवलपमेंट इन एंशियंट टाइम्स when art and architecture was there, क्या मंदिर बने हैं हमारे यहाँ पे। लुक एट द ब्रिलियंस ऑफ द इंडियन आर्टिस्ट्स। व्हाट, क्या ये साउथ के मंदिर क्या ब्रिटिशर्स ने बनाए हैं? इतना ऊंचा आप देखे तो मतलब देखते ही रह जाएंगे। इट इज ऑल इंडियंस हु हैव मेड इट। द ब्रिलियंस ऑफ द इंडियन आर्किटेक्चर, साइंस एंड मैथमेटिक्स। चूंकि साइंस की बात हो रही है ना, एक चीज दिमाग में आ रही है। रामायण पढ़ा है? Some of you might be knowing about Ramayana. In Ramayana, we talk about पुष्पक विमान। सुना है? विमान उस समय जब कुछ भी नहीं था, रावण के पास था। He had the पुष्पक विमान which Lord विश्वकर्मा had made. विमान ही उन्होंने भैया जो हवा में उड़ता है, तो हवा में अगर उड़ रहा है कोई जादू, there is nothing called as जादू। There is nothing called as जादू। Everything is science, everything is reasoning। उस समय उन्होंने इस तरह के इक्विपमेंट्स बना दिए थे जो पीपल कैन नॉट थिंक ऑफ। और किसी बुक में तो इस तरह का उड़ने वाली चीज हमको नहीं नजर आती है, बट हमारे यहाँ पे इन आवर बुक टेक्स्ट, रिलीजियस टेक्स्ट में there is the mention of something called as पुष्पक विमान। Are you understanding, children? Please try to understand मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूं आपको। Got it? That is there. So क्राफ्ट, मैथमेटिक्स भी बताया, रिलीजन एंड कल्चर तो हमारे यहाँ का ग्रेट है ही। रिलीजन एंड कल्चर, ओके। लॉ एंड फिलॉसफी, कानून हमारे यहाँ का बहुत ज्यादा जाना माना हुआ है। एंड ट्रेड हैड फ्लरिश्ड। कितना पैसा होता था हमारे यहाँ पे ना। साउथ इंडिया के जो स्पाइसेस थे ना, दैट वाज सो मच इन डिमांड इन द अदर कंट्रीज। तो साउथ में सम टेम्पल्स, पद्मनाभम टेम्पल है शायद, यस, इतना वहां के रूलर्स के पास दे हैड सो मच ऑफ गोल्ड। 4 कमरे गोल्ड से भरे हुए मिले हैं वहां पे। कहां से आया ये गोल्ड? पीपल हैव ट्रेडेड एंड दे हैव फाउंड इट आउट। ओके, सो हियर वी कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर। अभी एंड नहीं हुआ है। One more topic is there. We will be discussing it in the next class and then followed by the discussion of question and answers. Picture कुछ दिखाना चाह रही थी. Let's see that. So students, I have shown you this picture yesterday in the last video where we have seen Bharat Mata as an ascetic figure. Here Bharat Mata you can see is portrayed. आपको ये when you are describing this picture you need to mention about these details. ये details आप तभी mention कर पाओगे when you are very clear about this picture. So here you can see the picture that is made and the picture that is that has acquired many different forms. It is circulated in popular prints. And ascetic figure means she has been, Bharat Mata has been shown as a Devi. Ascetic figure means she has been shown with 4 hands
एंड कितना काम एंड कंपोज्ड है. दीज वेयर द सिंबल्स. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट इट. दीज वेयर द सिंबल्स दैट वे आर इंस्पायरिंग द इंडियंस. ओके चिल्ड्रन, so you see these kind of pictures were also made where the leaders have been shown with the picture of Bharat Mata. ये देखो हाथ में बुक है, बट बुक में what is highlighted is Bharat Mata. ठीक है. Pictographic questions, again I told you children that pictographic questions are important. You need to make it a part of your answers. So children, please just go through it. ये देखो बुक है, तो बुक का कवर पेज इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट भारत माता. गॉट इट चिल्ड्रन? ओके, ये देखो अ पॉपुलर प्रिंट. इसमें ही इज होल्डिंग द इमेज ऑफ भारत माता क्लोज टू हिज हार्ट, कि दिल के करीब है, इसीलिए लड़ाई चालू है, जिसमें कि भारत माता को रेस्पेक्ट दिलाने की पूरी बात हो रही है. गॉट इट? So popular prints were there जहाँ nationalist leaders were shown offering their heads to Bharat Mata. मतलब idea of तो देश के लिए, कंट्री के लिए होना बहुत ज़रूरी था. So this is the idea of sacrifice for the mother. It was very popular within the people during that time, which was catching the people's imagination. Got it children? So this is what I wanted to show you. एंड एक ये नतेशा शास्त्री वाली फ़ोटो भी देख लो. जस्ट गो थ्रू दिस पिक्चर ऑफ नतेशा शास्त्रीज भारत माता. इनके साथ हैं एंड टाइगर भी है, लायन भी है. तो ये है, दिस इज अवनींद्रनाथ टैगोर वाली इमेज जितनी शांत है, कूल एंड काम है, यहाँ पे इनको काफ़ी तेज तर्रार दिखाया गया है. सो शी शोन विद अ त्रिशूल एंड लायन के साथ और एलिफेंट के साथ ये खड़े हैं, तो सिंबल ऑफ पावर एंड अथॉरिटी. गॉट इट चिल्ड्रन? रेस्ट वी विल बी कंटिन्यूइंग इन द नेक्स्ट क्लास चिल्ड्रन. टिल देन थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट टू यू.